हेलो एवरीवन, मेरा नाम भरत पवार है और ये मेरा चैनल है जिसमें मैं मेरा फर्स्ट वीडियो आज डालने वाला हूँ। मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड बाय भरत सर। ओके, और इस चैनल पे हम बायो को सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और क्लास 10, 11, 12 के डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स पर यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और उसमें से क्लास 10 का एक फर्स्ट टॉपिक मैं आज लेने वाला हूँ जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर से बिलोंग करता है। दैट इज द फर्स्ट process like process, that is nutrition, and that nutrition we are going to talk about first today. Okay, and there are 4 topics in life process. First topic is nutrition, which we are going to discuss. Second topic respiration, third topic transportation, and fourth is as creation. These 4 topics we are going to cover in this video. So in this video, from these 4 we will take one. Okay, that is nutrition. Now what is nutrition? What is nutrition? Nutrition is a process in which organisms obtain food and at the same time utilization of the food is also there, and that is called nutrition. What is nutrition? In which organisms obtain food, and once they will obtain the food, they will be utilizing that food. So that they can get the energy. Okay, and when we are talking about the nutrition, so there are 2 types of nutrition. How many types? There are 2 types of nutrition is there. The first type of nutrition is autotrophic nutrition, and second type is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. And when we are talking about these nutrition, in this the type of organism which make their own food, they do not depend on anyone to make the food. And what is the example of that? The example is plants. There are many other examples, but in this, according to the class 10 standard, there will be one example, that is plant. Okay? And when we are talking about the heterotrophic nutrition, what is heterotrophic nutrition? In which organism not make food, so they depend on others. And what is the example? Example is human और साथ में दूसरे जो भी एनिमल्स हैं वो सब। तो न्यूट्रिशन यहाँ अभी तक अपन 2 पॉइंट पढ़े। एक पॉइंट न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कि न्यूट्रिशन, अगर they will ask you the question what is nutrition and what are the types, so this is how you need to write that nutrition is a process in which organism obtain food and utilization of the food is there in this. एंड सेकंड जो इसमें पॉइंट है वो याद रखना है आपको टाइप्स के। तो कितने टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के? देयर आर 2 टाइप, वन इज ऑटो एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच organisms are making food, and the example is photosynthesis, and this topic we are going to discuss first. And the second type in the nutrition is heterotrophic nutrition, in which organisms are not making food, they are depending on others. दूसरों पे डिपेंड है, वो फूड नहीं बनाते हैं। तो एग्जांपल क्या है? ह्यूमंस और एनिमल्स। ह्यूमन, it is a type of animal, so we are writing along with the human, writing animals there. And here we are going to start with the autotrophic nutrition. Now we will take the autotrophic. What is autotrophic nutrition? When we are talking about the autotrophic nutrition, this autotrophic nutrition, what is the definition of autotrophic nutrition? Organism which make their own food. We are making their food. An example, and we have already discussed example की बात तो करी। ये example क्या है? Plants. और आपको सबको पता होगा प्लांट्स में एक टाइप का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है through which they are making food. What that process is called, that process is called
photosynthesis. What that process is called? Photosynthesis. And if I will divide this photosynthesis into two parts, what is the meaning of photosynthesis? You know, there are two parts. One, if I will divide photosynthesis into two parts, the first one is photo and second one is synthesis. First is photo and second is synthesis. What is the meaning of photo? You know, photo means light. Photo means light, and synthesis means to produce something. And what we are talking about here, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि plants अपना food बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं अपना food? In the presence of light. अगर light होगी तो plants अपना food बना पाएंगे, otherwise वो नहीं बना पाएंगे. And that type of nutrition is called autotrophic nutrition. And when we are talking about photosynthesis process, so there will be an equation of photosynthesis. There is a balanced chemical equation I am going to write here. What is the balanced chemical equation? 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. What they are making? They are making glucose plus water plus oxygen, and this is how they are making. And in the presence of there will be a chlorophyll. And sunlight is also there. You know what is chlorophyll? Chlorophyll क्या है? Chlorophyll एक green pigment है. Plants green क्यों होता है? क्योंकि उनमें ये वाला pigment प्रेजेंट होता है और उस pigment का नाम क्या है? Chlorophyll. ये chlorophyll कहाँ होता है plants में? ये green pigment plant में एक जगह होता है, उस place को बोलते हैं chloroplast. क्या बोलते हैं उस place को? Chloroplast बोलते हैं. और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इन एग्जाम दे आर आस्किंग, CPSC दे आर आस्किंग मेनी टाइम्स. So this often asked question, and this is the balanced chemical equation. You should know that. Okay, this is the photosynthesis thing. And when we are talking about the necessary conditions, when we are talking about the chemical equation of the photosynthesis, so we should know this equation will take place because of the four things. How many? Four things. First is necessary conditions for photosynthesis. How many necessary conditions are there? अब ये कंडीशन होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, वरना नहीं होगा. तो वो कंडीशंस क्या क्या है? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है. सेकंड, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज सनलाइट. एंड द फोर्थ थिंग जो जरूरी होता है वो ग्रीन पिगमेंट, जिसका आप क्या बोलते हो? क्लोरोफिल बोलते हैं. इसको क्या बोल रहे हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं. तो ये चार कंडीशंस है. ये चार कंडीशंस होंगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा. ठीक है, तो इन चारों कंडीशन को एक एक करके पढ़ लेते हैं. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है. इसको कहां जाना है? प्लांट्स में जाना है. और प्लांट्स में कैसे जाना है? प्लांट्स में देयर इज अ स्ट्रक्चर, there is a structure जिसके थ्रू प्लांट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमेटा. क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटा. स्टोमेटा कहां होता है? स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होते हैं. कहां प्रेजेंट होता है? लीफ में. सपोज दिस इज द लीफ. This is the leaf. On the leaf, if we have a cross section of the leaf, यहाँ पे क्या बना रहा हूँ मैं? Cross section. Cross section of the leaf. इस क्रॉस सेक्शन को जब अपन देखेंगे तो क्या मिलेगा? इसमें ये ऊपर वाली लेयर, ठीक है, और इसमें ये नीचे वाली लेयर है जहां पे आप देखोगे ये स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको और कलर से बनाएंगे. Here, this is the stomata, you can see. This one structure, that is called stomata. And because of the stomata, gases exchange takes place. Carbon dioxide will move in and oxygen will move out at the time of day. At the time of day. This is how stomata helping to take the carbon dioxide from the air.
ठीक है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में आती है, ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और वाटर कहां से आ रहा है, लेट्स टॉक अबाउट द वाटर। वाटर प्लांट्स आर गेटिंग फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द सॉइल दे आर गेटिंग इट थ्रू रूट्स। किसके थ्रू मिल रहा है प्लांट को वाटर, रूट्स के थ्रू मिल रहा है। और रूट्स, अगर रूट का एक डायग्राम बनाएं तो उस डायग्राम में आप देख सकते हो रूट में क्या है, एयर्स है, ये रूट एयर्स है, क्या बोल रहे हैं वो, रूट एयर्स। रूट एयर्स क्या करते हैं, रूट एयर्स सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे प्लांट में, रूट में, सो दैट कि वो एब्जॉर्प्शन कर पाए वाटर का यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर जाएगा और वाटर का ट्रांसफर होगा, ये वाटर ऐसे प्लांट के अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 10th लेवल का पढ़ने वाले हैं, 11th 12th लेवल का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक वो है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक है सनलाइट। तो इन दैट सनलाइट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन वी आर गेटिंग डायरेक्टली, okay. Now let's talk about the fourth point, that is chlorophyll. Now let's talk about the fourth point. What is chlorophyll and where it is present? What exact location of the chlorophyll? Let's find out. देखते क्या है। फोर्थ पॉइंट का अपना फोर्थ पॉइंट है वो है क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल जो है कहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट में, ये एक किलो प्रेजेंट होता है, उसका क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है प्लांट में, ये लीफ में। कहाँ होता है, लीफ। लीफ में क्या होता है, लेट्स सी द क्रॉस सेक्शन देखते हैं लीफ का, कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। देखो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। लिसन, तुम्हारे बुक में जो डायग्राम है, क्लास 10 की बुक में जो डायग्राम है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का, वो डायग्राम प्रॉपर डायग्राम नहीं है, ठीक है। वो अगर प्रॉपर आपको डायग्राम देखना है तो क्लास 11 की बुक है और वो डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ जो प्रॉपर लीफ का डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, ठीक है। वो डायग्राम जो तुम्हारी बुक में है वो सही डायग्राम नहीं है, प्रॉपर डायग्राम नहीं है। वो डायग्राम प्रॉपर कौन सा है, लेट्स मेक दैट डायग्राम। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। इस लोअर एपिडर्मिस में वाले स्टोमेटा बनाएगा, बनाते हैं यहाँ पे स्टोमेटा, ये स्टोमेटा, यहाँ पे और क्या बनाना है, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, एक ये होती है और एक ये टाइप की सेल्स होती है, थोड़ी सी अलग टाइप से बनाते हैं ये वाली। इस टाइप ऐसे पूरे वो स्फेरिकल फॉर्म में लीफ में प्रेजेंट होते हैं। इन दिस अरेंजमेंट दे आर प्रेजेंट देयर। अब इसमें बात करते हैं, चलो एक करके बात करते हैं कैसे चीजें। ये जैसे मान लो ये लीफ है, जैसे मान लो ये लीफ है, तो इस लीफ में क्या करना है, इसका क्रॉस सेक्शन देखना है। तो अगर मुझे इसके अंदर देखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे कट करूँगा। कट करने के बाद ऊपर वाला जो एरिया होता है मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर वाली सरफेस अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली सरफेस लोअर एपिडर्मिस। इस लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है लीफ में, और बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस क्या चीज है, कौन कौन सी सेल्स है, क्यों कर रही है ये सब कुछ, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या देख रहे हैं कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर पहले देखना है कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो सरफेस होती है इसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस। एंड ये जो बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ये वाली सेल्स दो अलग अलग टाइप की होती है। वी आर कॉलिंग देम mesophyll cells, and this one is lower epidermis,
जैसे मैंने आपको बताया लोअर एपिडर्मिस में ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मैंने नाम पढ़ा था फर्स्ट आपने में, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो क्या चलता है, स्टोमेटा। ठीक है, अब पता क्या करना है, ये एग्जैक्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। अब यहाँ पे पहले देखना है क्लोरोप्लास्ट कहाँ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डॉट लाइन स्ट्रक्चर्स में बना रहा हूँ यहाँ पे, इन डॉट लाइन स्ट्रक्चर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट लाइन स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट को। ईच डॉट लाइन स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग द क्लोरोप्लास्ट। देयर इज अ मीडियम ऑफ क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द प्लांट इन these cells, and what these cells are called, these cells are called mesophyll cells। ठीक है, इनमें भी होता है, ये इसके टाइप के सेल्स जो है इनमें भी होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है, देखो इतने सारे क्लोरोप्लास्ट है। ये एक जो एक डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब मैं आपको बताऊंगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में देखेंगे क्लोरोफिल का है, इसमें देखना है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल का है, देखना है। तो मैं एक डायग्राम वापस बनाता हूं, किसका डायग्राम बनाने वाला हूं अभी, क्लोरोप्लास्ट का। इतने सारे जो डॉट दिख रहे हैं वो डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट को। एंड इन द क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में कहां है क्लोरोफिल। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाता हूं। ये रहा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। इन क्लास 7 में भी ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। इस टाइप का एक डायग्राम होता है और इसमें कितनी मेम्ब्रेन होती है, 13 मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन है, 13 मेम्ब्रेन। और इसके अंदर किस टाइप से स्ट्रक्चर्स होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, और दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे इनके अंदर यहाँ पे फ्लूइड भी भरा होता है। माफ करूंगा मैं उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। ये तो वहां करते हैं, जैसे ये वाली मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और ये अंदर है तो ये क्या बोलेंगे, इसको इनर मेम्ब्रेन। फिर ये जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है, इस फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये ग्रुप ऑफ ओवल शेप स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हो, ग्रुप ऑफ, दैट इज कॉल्ड ग्रेना। दैट इज कॉल्ड ग्रेना। एंड इन द ग्रेना, सपोज ये ग्रेना है, इतने सारे ग्रेना के अंदर इतने सारे ओवल शेप स्ट्रक्चर है ना, तो दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेना। बट इन द ग्रेना, this single structure is called thallicoid. What it is called, thallicoid. अब पता क्या करना है, पता करना है क्लोरोफिल का है। ठीक है, तो इस thallicoid का स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ। ये thallicoid है ना, इस thallicoid का स्ट्रक्चर, ये रहा thallicoid का स्ट्रक्चर। इस thallicoid में यहाँ पे होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का होता है इस जगह पे होता है, बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। दिस इज नॉट अ क्लोरोप्लास्ट, this is the chloroplast, this one is the thallicoid, one of the structure found in the chloroplast. Okay, this is thallicoid. Here between the membrane we can see chlorophyll is there. So here we have completed all 4 points. One is carbon dioxide, where it is present, how exchange is taking place in the plants. दूसरा water कैसे हो रहा है, कैसे plants में आ रहा है। और आपको एक चीज और बता दूं, water जो है वो water plants में travel करता है, transport होता है to one tissue of the plant, that is called xylem। ठीक है, जाइलम क्या है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट को वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड और थर्ड पॉइंट था सनलाइट, तो इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। सनलाइट बिकॉज़ ऑफ सन वी आर गेटिंग क्लोरोफिल,
chlorophyll is a green pigment. It is a green pigment chlorophyll. Where it is present? In a chloroplast. Chloroplast कहाँ होता है? Leaf में होता है. Leaf में कहाँ होता है? Cross section देखा फिर कहाँ होता है? पता किया तो leaf का ये ऊपर वाली सरफेस थी, नीचे वाली सरफेस में स्टोमेटा देख सकते हो आप. ठीक है. और इस में स्टोमेटा के बाद यहाँ पे अपर और लोअर के बीच में यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, दो टाइप की सेल्स दिख रही है, इनको मेसोफिल सेल्स बोलते हैं. ठीक है. और इन मेसोफिल सेल्स में आप हर एक सेल में बहुत सारे डॉट्स देख रहे हैं. ठीक है. ये सब डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट को. और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है? क्लोरोफिल. तो ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपको दिख रहा है. ठीक है. इस क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम में ग्रेना है. ये ग्रेना के बाद ये जो है इसको स्टोमा बोलते हैं. आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, बिटवीन द ग्रेना here you can see the tubular red color structure, इसको बोलते हैं स्टोमा लेमिना. क्या बोलते हैं इसको? स्टोमा लेमिना बोलते हैं. और फिर ये ग्रेना का जो बंच है इसको अपने यहाँ पे अलग से बताया. ये पूरा ग्रेना है. ग्रेना किससे? ओवल शेप स्ट्रक्चर से बनता है. ओवल शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड. थैलेकॉइड में देखा तो पता चला कि क्लोरोफिल यहाँ है. ठीक है. तो ये आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है. न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको, और उसके बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने एक्सप्लेन किया आपको. ठीक है. थैंक यू.